કાનાભાઈ, Sir, I think everybody can listen. હવે આવી ગયા આમાં I ચેટમાં આપણે પૂછી લો ને, બધા સાંભળી શકે છે? Can everybody hear my voice? Hello. યસ, ઓડિબલ આવ્યું. હાલો, ઓકે, બરાબર છે. Yes. Yes. Okay. So, should I start now? પ્લીઝ પ્લીઝ. Okay. Great. Let me start this program once again. Good afternoon and welcome to all the members and all my employee friends. First of all, I'd like to thank you for coming into this wonderful webinar, and especially I would like to thank each and every member of Gems and Jewelry Association for giving me this opportunity, especially Divyesh Bhai, Mayur Bhai, Ketan Bhai, Vijay Bhai, and all the members. And I regret જો હું કોઈનું નામ ન લઈ શક્યો હોય. And first of all, જે અત્યારનો જે આ પ્રોગ્રામ છે, that is all about 10 keys for employee success. એટલે સપોઝ એમ્પ્લોયી આજે જે છે એમના માટેની જે 10 કીઝ છે એ આજે હું તમારે બધાની સામે પ્રેઝન્ટ કરવાનો છું. So let's begin this program. But before starting this program, I would like to request all the attendees who have joined the program to be participative. એટલે તમારે પાર્ટિસિપેટિવ રહેવાનું છે. આપણે ઘણી બધી સાથે ગેમ્સ રમશું, ઘણું બધું નોલેજ શેર કરશું, અને પણ જ્યારે જ્યારે હું તમને કઈ પ્રશ્ન પૂછું તમારે તમારા ચેટ બોક્સમાં એનો આન્સર આપવાનો છે, જેથી કરી અને આ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન રહી. આ ખાલી વન વે ન થાય, આપણે વન વે આ નથી કરવાનું. સો લેટ્સ begin this program. Sir, next slide please. યસ. સર, હું પીપીટી સરખી જોઈ નથી શકતો સર. કેન યુ ફરીથી કરું એકવાર? હા પ્લીઝ સર. હા. હવે હવે નીરુભાઈ આવે છે? યસ સર, યસ. ઓકે. યસ સર, આની પહેલાની એક કરશો? હા, ના ના, હાજી કરી દો. As I've said earlier, welcome to all the members of Gems and Jewelry Association. અને next હું આપને મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માંગુ છું. My introduction myself, નીરવ ગોહેલ. હું એક બિઝનેસ કોચ છું, અને 18 વર્ષથી હું તમારી જેમ એક એમ્પ્લોઈઝ જ હતો. મારી જે કરિયરની જે શરૂઆત હતી, that is as a data entry operator, and doing that as I have come across, હું ધીરે ધીરે જે રીતે આગળ વધ્યો, હું અલગ અલગ પોસ્ટ ઉપર રહેતો ગયો. હું ફિલ્ડ માર્શલ, કેપ્ટન ટ્રેક્ટર્સ, આ બધી જગ્યાએ મેનેજર હતો. વ્હાઇટ વેગન કરીને કંપની છે, એમાં મેનેજર હતો. એન્ડ આફ્ટર સ્પેન્ડિંગ so many years in management field, last 2 years I have become a business coach. HR Total Outsourcing Private Limited મારી કંપની છે, જેમાં અમે અલગ અલગ બિઝનેસીસ ને એમ્પ્લોયી રિલેટેડ ગાઈડન્સ આપીએ છીએ, કંપનીનું કોચિંગ કરીએ છીએ, અને એમ્પ્લોઈઝનું પરફોર્મન્સ વધારે કેવી રીતે કરી શકાય એની અમે વાત કરીએ છીએ અને એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ એમના બિઝનેસમાં. અત્યારે જે મારી પાસે બિઝનેસીસ છે એમાંથી ફ્યુ ઓફ ધેમના હું નામ લેવા માંગીશ. ગિરિરાજ હોસ્પિટલ્સ, બ્લુ ક્લબ, મટુકી રેસ્ટોરન્ટ, there are plenty of that. So હવે આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારશું. પ્લીઝ સર. Okay, transform your life. Transformation is what I am after. હું તમને ઇન્ફોર્મેશન દેવા નથી આવ્યો. I am not here to give you information. See, ઇન્ફોર્મેશન થી નોલેજ વધે છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન થી તમારું જીવન બદલે છે. તો હું તમને તમારા જીવનને બદલવા માટે આવ્યો છું. And this is a big promise that I am trying to make here. પણ તમે બધા પાસે અનલિમિટેડ પોટેન્શિયલ છે. You all will agree that તમારી પાસે 100% you have all the different types of potential in yourself. તમારામાં એક પોટેન્શિયલ છે, તમારા બધામાં પોટેન્શિયલ છે, જે તમને તમારા સક્સેસની ટોચ ઉપર પહોંચાડી શકે છે. તમે ઘણીવાર એવી રીતે કદાચ કોઈ વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં તમે જોઈ હશે કે એ વ્યક્તિ જ્યારે સામાન્ય જીવન જીવતી હોય અને એના જીવનમાં કોઈ એક એવી ઘટના બને છે કે એ ઘટના પછી એનું જીવન આખું બદલાઈ જાય છે, અને એ ઘટના એના જીવન ઉપર એવી અસર કરે છે કે એકાદ વર્ષમાં એ એના કરિયરની ટોચ ઉપર પહોંચી જાય છે, અથવા એનું પૂરેપૂરું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. આઈ હોપ અત્યારનો જે આપણો પ્રોગ્રામ છે, આપણે જે નેક્સ્ટ 1 hour અત્યારે આપણે સમજી અત્યારે આપણે સાથે સ્પેન્ડ કરવાના છીએ, એ આપણે
ओके, हम ओके हिंदी में करते हैं. आई थिंक आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट टू स्टार्ट इन हिंदी, सो आई विल ओके. तो अभी हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड सर. आप अपने चैट बॉक्स पे जवाब लिख सकते हैं. मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं. Who wants tremendous success in their career? More money, more position. I'm repeating it again. This is the question I would like to start with. ये क्वेश्चन आपकी करियर के लिए पाथ ब्रेकिंग हो सकता है. So who wants tremendous success in their career? More money, higher position. कौन चाहता है? Exactly. See, आप सब सोचिए, जो भी कोई अपना करियर शुरू करता है, या तो फिर जो कॉलेज से आता है या एमबीए की डिग्री लेके आता है, या तो फिर अपने करियर की शुरुआत करता है. एवरीबडी वांट्स मोर मनी, हायर पोजीशन एंड ट्रिमेंडस सक्सेस इन देयर करियर. लेकिन अपने आप से पूछिए, या तो फिर आप आजू बाजू देख सकते हैं कि क्या ये सबका पोजीशन या तो फिर सबका ये जो ड्रीम है, या ये सच होता है या नहीं होता है. अपने आप से पूछिए. शायद नहीं होता है. लाइक वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल बी एबल टू रीच एट दैट टॉप. वो अपनी सक्सेस की टॉप पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. अगर 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 सबके पास ये ड्रीम है कि सबको आगे बढ़ना है, मोर पोजीशन, हायर पोजीशन, मोर मनी चाहिए, तो ये मिल क्यों नहीं सकता है? क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज द रीजन? क्या ये रीजन है कि सबको अगर ये चाहिए और वो सबका ड्रीम है, तो ये क्यों मिल नहीं पाता है सबको? So that is my question to you all. What is the reason? So आपको जवाब देना है. What is the reason? आपको लगता है कि अगर सबके पास एक ड्रीम है कि सबको ट्रिमेंडस सक्सेस चाहिए अपने करियर में, ज्यादा मनी चाहिए, हायर पोजीशन चाहिए, तो मिल क्यों नहीं पाता है, या तो फिर बहुत कम लोगों को मिलता है? What is the reason? Yes, दिशा नहीं मिलती, गोल नहीं है, absolutely true. Yes, सपोर्ट नहीं है, फोकस नॉट क्लियर, absolutely. गाइडेंस नहीं है, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, यस. नॉलेज नहीं है, not trying, vision nahi hai, absolutely. Great, superb, great answers. Let me tell you one thing. जब भी कोई आदमी अपनी करियर शुरू करता है, तो उसके पास दो चीजें जरूरत होंगी. और नाउ द प्रोग्राम बिगिंस, और मैं चाहता हूं कि सब इस पे फोकस करें. सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड. Yes, you are not trying till and everybody is still answering. Thank you very much. Proper guidance, absolutely. देखिए क्या होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं अपनी करियर को शुरुआत करने के लिए, तो हमारे पास एक कोई स्किल होता है. आप सपोज आप अगर सेल्स में जा रहे हैं, तो सेल्स है वो आपका स्किल हो गया, यानी कि आपको सेल्स के लिए लिया जाता है. अगर आप अकाउंट्स में है, सपोज आपने अकाउंटिंग किया है, तो अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स का आना, वो आपकी एक स्किल है. तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर जब आप करियर अपना शुरू करते हैं, तो दो चीजों की आपको जरूरत होती है. वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें हैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल. ये दो चीजें रहती हैं जो आपके करियर में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है. पहले हम हार्ड स्किल को समझते हैं. हार्ड स्किल यानी कि जिसके लिए आपको हायर किया जाता है. सपोज आप अकाउंट में है, जैसे मैंने बताया, तो आपको अकाउंटिंग के लिए आपके बॉस ने हायर किया है, तो दैट इज योर हार्ड स्किल, जिसकी वजह से आपको हायर किया जाता है. और हार्ड स्किल के दूसरा जो पहलू है, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है?
वो देखते हैं सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि टाइम मैनेजमेंट एक हो गया, दैट इज अ सॉफ्ट स्किल। टीम प्लेयर होना एक सॉफ्ट स्किल है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका एक सॉफ्ट स्किल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खाली आपके पास हार्ड स्किल हुआ तो उसकी वजह से आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल्स लगेगा। तो अभी इन दोनों को साथ में समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर प्लीज। आपने दो व्यक्ति यानी दो पर्सन का नाम सुना होगा, एक है सचिन तेंदुलकर और एक है विनोद कांबली। दोनों का नाम आपने सुना होगा। तो अभी देखिए, अगर आपको याद है तो जब भी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने अपना जो करियर है उसकी शुरुआत की थी, तो दोनों ने साथ में शुरुआत की थी। जो विनोद कांबली है, वो ऐसा बोला जाता था कि विनोद कांबली जो है वो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड थे। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन दोनों का हार्ड स्किल क्या था? बैटिंग उनका हार्ड स्किल था, बैटिंग, जिसके लिए वो टीम में थे। अभी देखिए दोनों के पास हार्ड स्किल सेम था, लेकिन आप देखिए एज द इयर्स प्रोग्रेस, जब जैसे इयर्स आगे बढ़ते गए तो एक बंदा ऊपर चढ़ता गया अपनी करियर की सीढ़ियों में और एक नीचे गिरता गया। व्हाट इज द डिफरेंस? आप सोचिए, अगर एक बंदे के पास हार्ड स्किल अच्छी है दूसरे बंदे से, और उसके बाद उसका जो फ्रेंड है उसके पास उतनी हार्ड स्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 साल के बाद एक टॉप पे है और एक बॉटम में है। सो डेफिनेटली द चेंज, जो चेंज है या तो फिर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। जो सॉफ्ट स्किल्स है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो अभी आपको मालूम हो गया होगा कि सॉफ्ट स्किल्स आपकी लाइफ के लिए कितनी जरूरी है। अगर आपने आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो अपनी करियर में आपने यूज कर ली, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अपनी करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अभी हम आगे आगे जैसे प्रोग्राम में जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से आपका ग्रोथ होगा। सो विल टेक इट वन बाय वन। नेक्स्ट स्लाइड सर। So this session will be based on a survey that is done by Gallup. Gallup is an American research institute. उन्होंने एक रिसर्च किया था 2000 ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और उस जो उन्होंने जो ये रिसर्च किया था उसमें उन्होंने 10 क्वालिटी, 2000 ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च करने के बाद टॉप के उनके एम्प्लॉई थे, जो टॉप पे थे, उनकी 10 क्वालिटीज को उन्होंने किया था, उसकी 10 क्वालिटी को उन्होंने साइड में रखा है। तो वो 10 क्वालिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और वही सॉफ्ट स्किल्स अगर आपने अपने करियर में यूज कर ली तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो फंडामेंटल्स है मैं उसकी बात करना चाहता हूं। सॉफ्ट स्किल्स में एक के बाद एक आपको बताता जाऊंगा, उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स मतलब क्या है? अगर मान लीजिए एक बड़ी बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग को हमें बहुत बड़ी बनाना है तो उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो जो फंडामेंटल है वो नींव है। अगर आपको आपकी करियर एकदम बढ़िया चाहिए तो उसके फंडामेंटल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे। तो वो जो फंडामेंटल्स जो है वो क्या है वो हम अभी देखेंगे। फंडामेंटल्स मीनिंग क्या, कि जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसके बावजूद उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो तीन टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा तीन टाइप के एम्प्लॉइज, थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। कौन कौन से हैं थ्री टाइप्स के एम्प्लॉइज? थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट इज सेल्फ फोकस्ड। तीन टाइप के एम्प्लॉइज में सबसे पहले है सेल्फ फोकस्ड, यानी ये वो एम्प्लॉय है जो अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरा पगार, मेरा काम, मेरी छुट्टी, he only thinks of himself only. सेकेंड टाइप्स के जो एम्प्लॉइज रहते हैं दैट इज करियर फोकस्ड, यानी जो अपने करियर को फोकस करते हैं। यानी कि जब सेल्फ फोकस्ड आदमी को कहीं पे जॉब लीव करना होता है तो वो सोचता नहीं है, वो छोड़ देता है। करियर फोकस जो आदमी है, सपोज अब हम इस सिनारियो जो अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं, कि सेल्फ फोकस्ड आदमी है तो वो क्या करेगा कि हम उन्होंने सपोज डिसाइड किया कि भाई मुझे ये जॉब छोड़ना है, तो वो जॉब छोड़ देते हैं।
वो दूसरा कुछ नहीं सोचते। करियर फोकस्ड आदमी क्या सोचेगा कि भाई अभी मैंने 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, अगर मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा तो मेरे जो सीवी होता है, मेरा जो रिज्यूमे होता है, उसमें एक रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा कि ये बंदा थोड़े थोड़े टाइम में जॉब चेंज कर देता है। तो दूसरे टाइप का जो बंदा होता है वो करियर फोकस्ड होता है, दूसरे टाइप का जो एम्प्लॉय रहता है दैट इज करियर फोकस्ड। अभी थर्ड टाइप के हम एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे। जो थर्ड टाइप का एम्प्लॉय है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड। मतलब वो बंदा अपना नहीं सोचता है, वो करियर का नहीं सोचता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का सोचता है। मतलब क्या, अभी सोचिए कि अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन है, तो अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में अभी वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जाए उसके बारे में सोचता है। अगर आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ करना है अपने करियर में, अगर आपके करियर को बहुत आगे लेके जाना है, तो आपका जो फोकस रहना चाहिए दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड। इसके आप से आपका जो करियर है उसको एक बहुत ही पुश मिलेगा। तो अभी जो आप सोच रहे हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, अपने टीम के बारे में सोचिए। अभी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसे आप सोच सकते हैं कि भाई जब ये खुलेगा तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करूंगा। जो ये तकलीफ है, जो ये प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, तो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मैं जितना जितना पहले देता था उससे 5 गुना दूंगा। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड एम्प्लॉय। उसका ऐसे ऐसे जो भी बंदे रहते हैं उनका बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जिस जिस जगह पे काम किया है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मैं जहां पे भी काम किया, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा यूनिट है, ये मैं ओन करता हूं। तो मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड रहा। आप जितने ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड होंगे उतना ही आपका ग्रोथ होगा। सो टू स्टार्ट विथ, आपको ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड होना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। भूल जाइए अपने बारे में, भूल जाइए करियर के बारे में। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड हो सके, आपकी करियर को कोई नहीं रोक सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड द नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें मैंने 3 टाइप के वर्क एटीट्यूड की बात की है। 3 टाइप के वर्क एटीट्यूड। वो 3 टाइप के वर्क एटीट्यूड क्या होते हैं? 3 टाइप के वर्क एटीट्यूड में सबसे पहले जो है, जो वर्क स्टाइल है, दैट इज एवरेज। सेकंड इज गुड एंड थर्ड इज बेस्ट। ऑब्वियसली आपको बेस्ट अगर आप करेंगे, अगर आप बेस्ट में काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। सपोज अभी हम जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अभी हम कोई ज्वेलरी शोरूम का एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप सेल्स में हैं और आपको आपके बॉस ने बोला कि भाई कल एक 4 बजे पार्टी आने वाली है बड़ी, तो वो इसको ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए, तो आप उसको अटेंड कर लेना। तो आप बोलते हैं ठीक है। तो जो एवरेज बंदा रहता है वो कैसे करेगा? तो वो बोलता है ठीक है, और वो अपने काम में लग जाता है। वो कुछ ज्यादा बातें पूछता नहीं है। वो कल 4 बजे की राह देखता है, 4 बजे आ गया, वो अपने साथ इंटरेक्शन, वो क्लाइंट आया, उसको इंटरेक्शन कर लिया और वो चला गया। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज पीपल। नाउ जो गुड होता है वो क्या करता है? वो ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा कि सर कौन आ रहा है, सर कितने लोग होंगे, और उसके बाद जब वो इंटरेक्शन, सेल्स का इंटरेक्शन होना है, उसका वो प्लानिंग करता है कि पहले मैं ये बताऊंगा, पहले ये करूंगा। दैट इज द एटीट्यूड या वर्क स्टाइल ऑफ गुड। अभी जो बेस्ट रहता है वो क्या करता है? वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जो गुड ने किया था। लेकिन वो एक चीज और करता है, वो ये करता है कि जब कोई बड़ी पार्टी आ गई और पूरा इंटरेक्शन खत्म हो गया, अभी उन्होंने सेल किया है या नहीं उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिव्यू करता है कि भाई क्या हुआ, कैसे बात हुई, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो वर्क स्टाइल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एवरेज, गुड और बेस्ट, आपको बेस्ट में रहना है, आपको ज्यादा करना है, और जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा। ये डेफिनेटली, दैट इज वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो मैंने अभी बात की, ये फंडामेंटल्स के बारे में बात की मैंने, कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। व्हाट इज द फंडामेंटल्स? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिए सक्सेसफुल जाने के लिए आपको क्या फंडामेंटल्स चाहिए एज एम्प्लॉइज? आपको क्या फंडामेंटल्स चाहिए रहेंगे? तो अभी हम शुरू करते हैं। जो 10 सॉफ्ट स्किल्स के मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में एक के बाद एक हम देखते जाएंगे, और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the first.
હવે આજે अब ये जो रिसर्च जो है, जो मैंने आपको बताया, जो 2000 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च हुआ है, उसमें से जो टॉप पे लोग थे उसके बारे में ये रिसर्च है, उनकी क्या क्वालिटीज थी जिनकी वजह से वो टॉप पे पहुंच सके। उसमें से जो सबसे पहले जो क्वालिटीज थी, दैट इज बीइंग कंटिन्यूअसली गुड एट देयर कोर स्किल। कोर स्किल जैसे हमने देखा पहले, कोर स्किल क्या होता है जिसकी वजह से आपको हायर किया जाता है। सपोज मैं अकाउंट्स में हूं, तो अकाउंट्स मेरा कोर स्किल है, तो मुझे अपने जो स्किल है उसमें कंटिन्यूअसली अच्छा 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 होना पड़ेगा। सपोज आप एक अकाउंटेंट है और आपको एक अकाउंटेंट एज अकाउंटेंट आपको जॉब मिलता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको थोड़े थोड़े समय पे अपनी जो अकाउंटिंग स्किल्स है उसको इंप्रूव करते रहना है, वहीं पे नहीं रहना है। अगर आप वहीं पे रह गए तो आपका ग्रोथ भी अटक जाएगा। अगर आपको ग्रोथ कंटिन्यूअस चाहिए तो आपको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है, अपनी कोर स्किल को, अकाउंटिंग एज ए स्किल को बढ़िया बनाते रहना है। जीएसटी के बारे में आपको ज्यादा जानना है, कैसे, जैसे सर ने आज इनकम टैक्स रेट के बारे में एक अच्छा प्रेजेंटेशन था, उसको मींस आप ऐसे सेशंस अटेंड करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो अपनी कोर स्किल को आपको बढ़ाते रहना है। कई बार क्या होता है कि आप बैक ऑफिस में है, बहुत सेल्स में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2-3 साल आपने बहुत मेहनत किया, अभी आप लीडर बन गए हैं, सपोज आप मैनेजर बन गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत मेहनत करके एक जगह पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर हम रुक जाते हैं, हम ज्यादा काम नहीं करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप लीडर हैं, तो आपको 100% अब ज्यादा काम करना है, क्योंकि अभी हेलो, जय श्री राम भाई। हाँ नीरव भाई, करो 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 करो। आपको आपको जो मैनेजर, अगर आप मैनेजर बन गए हैं, तो आपको अभी आपका काम रोकना नहीं है, उसको डबल स्पीड पे आगे बढ़ाना है। आपको डबल स्पीड पे आगे बढ़ाना है। अगर आप लीडर हैं तो आपको रुकना मना है। अगर मैनेजर हैं कहीं पे, अगर आप कहीं पे लीडर हैं, यानी कि 2-3 साल के बाद आपने काम किया, आप मैनेजर बन गए हैं, तो अभी तो आपका काम शुरू हुआ है। अभी जो बॉस है, जो आपके ओनर्स हैं, उसका आपके प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाला है, तो आपको अभी ज्यादा काम करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कंटिन्यूअस ग्रोथ है वो रहना चाहिए। अगर आपने कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं किया, यानी कि 2-3 साल के बाद अगर आप रुक गए, तो आपका ग्रोथ भी वहीं रुक जाएगा। तो अगर आप एक जगह पे पहुंच गए हैं, मैनेजर हैं, लीडर है, तो भी आपको आगे बढ़ते रहना है। तो भी आपको अपनी टीम के पास, क्योंकि अगर आप मैनेजर हैं तो आपकी टीम को आपके पास से एक्सपेक्टेशन होगी। अभी आपको तो काम करना ही है, लेकिन आपको अपनी टीम के पास से काम करवाना है। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो आप रुक ना जाएं, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि रोजर फेडरर, अगर आपको नाम मालूम है, रोजर फेडरर, ही इज अ टेनिस चैंपियन। तो वो ही इज अबाउट 38 ईयर्स ऑफ एज, और जो टेनिस रहता है उसमें 34-35 के करीब लोग रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ही इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग हिज गेम, वो अपनी गेम को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते आया है, तभी वो 38 की साल में वो खेल रहा है। और लास्ट ईयर उन्होंने 3 चैंपियनशिप्स जीते थे इन लास्ट ईयर। सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल टू सी कि जब आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं, तो आप धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। मतलब क्या, अगर आप खड़े रह गए तो आपका ग्रोथ डिक्लाइन होता जाएगा, यानी गिरता जाएगा। तो आपको अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं देना है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपकी कोर स्किल को पहचानिए और उस कोर स्किल को आगे बढ़ाते रहिए। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई, अगर आप सेल्स में हैं तो उस कोर स्किल को आप आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजर की पीपल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको लोगों के पास से काम लेना है, तो आपकी पीपल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसको बढ़ाते रहिए, उसके बारे में पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है।
सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने गेम को इंप्रूव करते रहे। टेनिस एल्बो हुआ था तब उन्होंने कई शॉट्स अपने बंद कर दिए, नए नए शॉट्स उन्होंने इन्वेंट किए, अपनी कोर स्किल को वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते गए। सो द फर्स्ट स्किल, द फर्स्ट सॉफ्ट स्किल ये है कि आपको अपनी जो कोर स्किल है उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना है। नाउ द नेक्स्ट स्किल, जो दूसरी जो स्किल है जो आपको चाहिए रहेगी आगे बढ़ने के लिए, दैट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। यानी क्या? स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मानी आपके जो काम के एथिक्स हैं वो क्या है, मतलब आपके काम का स्टैंडर्ड। आपके काम का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड यानी कि लेवल। लेवल मीनिंग कि आप अगर जो काम करते हैं तो वो अभी जिस लेवल पे है उससे आपको बढ़िया करना है। सपोज आपको वो ढूंढना है कि मेरा जो काम मैं अभी कर रहा हूं, सपोज आप बिल बना, अगर आप अभी बिल बना रहे हैं, सेल्स बिल बना रहे हैं, तो उसमें भी आप इंप्रूव कर सकते हैं कि कैसे मैं अपने बिल्स को ज्यादा अच्छी तरह से बना सकता हूं। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो भी आप उस सेल्स की प्रोसेस को सोच सकते हैं कि इस सेल्स की प्रोसेस को मैं कैसे मेरे लेवल को अप करता चलूं, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि आपका ग्रोथ कैसा होगा। सो आपके स्टैंडर्ड को पहचानिए। सपोज मैं क्रिकेट का एग्जांपल देना चाहूंगा, ये स्टैंडर्ड या लेवल्स क्या होते हैं। सपोज गली में भी क्रिकेट खेला जाता है, उसके ऊपर जो सोसाइटी लेवल पे भी क्रिकेट खेला जाता है, फिर सिटी लेवल पे भी खेला जाता है, फिर स्टेट लेवल पे खेला जाता है, फिर इंडिया लेवल पे खेला जाता है। तो ये मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ, ये लेवल्स कैसे होते हैं। तो आपको भी ढूंढना है कि मैं किस लेवल पे अभी काम कर रहा हूँ और वो लेवल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। बिकॉज जितना आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपके काम का जो तरीका है वो बदलेगा, उतना ही आपका ग्रोथ होगा। तो अपने काम का स्टैंडर्ड पहचानिए और उसको आप बढ़ाते रहिए कंटिन्यूअसली। और जैसे कि ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो आप सेल्स में हैं, तो आप सेल्स में गोल्स अगर आपको मिलते हैं तो उसका कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास सेल्स का कुछ, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है इसके ऊपर काम करने के लिए, लेकिन आपका जो गोल्स रहते हैं जब ये ओपन हो जाएगा, अगर आपको सेल्स में कुछ गोल मिलते हैं तो उसका आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई ये मेरा गोल है तो मैं ऐसे ऑपरेट करूंगा, ऐसे आगे बढ़ूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी तक तो प्लानिंग नहीं कर रहे थे आप, लेकिन अभी शुरू किया, मतलब आपके लेवल को आप इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लेवल को बढ़ाते रहिए। टोनी रॉबिन्स, कई सारे लोगों ने टोनी रॉबिन्स का नाम पढ़ा होगा। उनका एक कोट है, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, रेज योर स्टैंडर्ड्स। अगर आप आपके जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने स्टैंडर्ड को रेज करिए। उसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप बिल बना रहे हैं तो आपने सपोज बिल बना लिया और बिल बनाने के बाद अभी आप 2 बार चेक नहीं करते हैं, तो आप वो रेज स्टैंडर्ड जो ये हम बात कर रहे हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कुछ बोलना चाहता कि ये मोटिवेशन सेशन नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी दूंगा कि जो आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं उसको हम स्ट्रेटेजीज पूरा देते हैं कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं रहेगा, तो मैं छोटे छोटे आपको टिप्स या ट्रिक्स या टूल्स 2-3 देके यहाँ से जाऊंगा जो आपकी करियर में आपको बहुत काम आएंगे। सो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बिल बना रहे हैं तो बिल बनाने के बाद अभी आप 2 बार चेक नहीं करते हैं, तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आप वो 2 बार चेक करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने 2 बार चेक किया तो जो कोई उसमें गलती रह गई है तो वहीं पे आपको नजर में आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे आपको अपने लेवल को रेज कर सकते हैं। सो आपको अभी ये सोचना है कि आप अभी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। गुड, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, जो नेक्स्ट क्वालिटी है, नेक्स्ट क्वालिटी इज बीइंग डिपेंडेबल। अभी डिपेंडेबल या तो फिर रिलायबल, ये क्या होता है? रिलायबल यानी विश्वास करने के लायक। आप अगर अपने आप को देखेंगे, जब से आपने पहला दिन ज्वाइन किया था अपने जॉब को, तो जब जैसे जैसे दिन बढ़ते गए आपकी एक इमेज बढ़ती गई, आपकी इमेज जो है वो बढ़ती गई या तो फिर बिगड़ती गई। वो कैसे हो सकता है, वो कैसे होता है? सपोज आपने कहीं पे ज्वाइन किया है सपोज, और अभी ओनर आपको 5 काम देते हैं। अगर 5 में से पांचों 5 काम आपने बढ़िया तरीके से किए तो आपका एक इमेज उनके माइंड में बन जाएगा कि भाई इनको काम देते हैं तो परफेक्ट तरीके से हो जाता है। अगर आपने 5 में से 3 किए तो भी वो सोचते हैं कि भाई ओके, इनको 5 काम देते हैं तो 3 कर सकता है, ठीक ठाक बंदा है।
अगर आपने 5 में से एक ही काम किया तो आपका क्या इमेज बनेगा, आप सोच सकते हैं। मैं मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये चाह रहा हूँ कि हर दिन जब ये नॉर्मल ये सब ओपन हो जाएगा और एक आप नए तरह से अपनी जिंदगी को या तो फिर बिजनेस या फिर जॉब शुरू करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन ब दिन यानी हर रोज आप अपने ब्रांड या अपनी इमेज उसको बना रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं। तो आपको सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं रिलायबल बंदा बन रहा हूँ कि अनरिलायबल बंदा बन रहा हूँ। आपको जो भी काम आपको दिए जाते हैं, जो भी काम आपको दिए जाते हैं, आपको वो 100% डेडिकेशन के साथ पूरे करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि वो आपकी इमेज बढ़ा रहे हैं। आपकी इमेज बढ़ रही है या बिगड़ रही है। सपोज इंडिया की क्रिकेट टीम 10 में से 10 मैच हार जाती है, तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो खराब खेल रही है, भले वो कितनी मेहनत करे, वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो ये बात आपको सोचनी है अपने बारे में कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको रिलायबल बनना है। अगर आप रिलायबल नहीं बने तो आपका जो ग्रोथ है वो अटक जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो टॉप 3 में है। आपको रिलायबल बनना है। आपका जो काम आपको दिए जाते हैं उस काम में आपको डिपेंडेबिलिटी लानी है, ताकि ओनर आपको काम देते वक्त निश्चिंत फील करे कि इनको काम दे दिया तो हो ही जाएगा। तो आपको अपनी ऐसी एक इमेज बनानी है, अपनी एक ऐसी छवि बना के रखनी है कि मुझे काम मिला तो ये हो ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, द नेक्स्ट क्वालिटी जो सब टॉप एम्प्लॉइज में रहती है दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी आप सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, आपने कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है वो तो शायद आप सब जानते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी जीवन को देखने का सकारात्मक तरीका। तो अभी वो काम कहाँ पे आता है, मतलब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो काम कहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड काम आएगा आपको खराब सिचुएशन में। मतलब अभी जो ये लॉकडाउन है, हम घर पे बैठे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, या तो फिर कोई बोल रहा है कि ये इसका पगार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या तो फिर कई सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी है, ऐसा कुछ आप सुन रहे हैं। तो जब सिचुएशन खराब होती है तभी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। सभी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब खराब सिचुएशन है, जब टफ आपको कोई कोई गोल्स मिलते हैं, कोई काम ऐसा मिलता है जो आपने अभी तक नहीं किया है, तभी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होगी कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा। दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई नहीं, ये अगर लॉकडाउन है, जो भी सिचुएशन है, उसमें से कुछ अच्छा होगा, इसमें से भी कुछ ऐसा निकल के आएगा कि जो मुझे मेरी करियर को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड को समझ लिया तो कोई भी चीज आपको इतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी वो है। यानी कि आपके पास कुछ खराब हो जाता है। ज्ञान वत्सल स्वामी किसी मीन्स यहाँ पे किसी ने सुना होगा, वो एक बात बोलते हैं कि भाई आपके साथ जो होता है वो सिर्फ 10% है और आप उसको कैसे देखते हैं वो 90% है। मतलब कोई भी चीज आपके साथ हुई तो आपको वो गलत तरीके से नहीं लेना है, उसको पॉजिटिवली लेना है कि नहीं, ये भी चीज मेरी करियर को आगे लेके जाने वाली है। इस चीज से मैं क्या सीख सकता हूँ, अब ये लॉकडाउन है तो मैं इस लॉकडाउन में क्या कर सकता हूँ जिससे मैं मेरी करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं। तो ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपका जो बिलीफ होता है, आपकी जो मान्यता होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि आप क्या मानते हैं। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। सपोज मैं दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली में मेरा पैकेट किसी ने मैंने स्टील कर लिया यानी चुरा लिया, तो मैं क्या सोचूंगा, दिल्ली में सब चोर होते हैं। तो अब ये क्या हो गया, एक मेरी बिलीफ बन गई कि दिल्ली में सब चोर हैं। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ। अगर आप अभी आप जब भी आप दिल्ली दिल्ली जाएंगे तो क्या होगा, आपको देख लेके आप ये देखते रहेंगे कि भाई मेरा पैकेट तो कोई नहीं चुरा रहा है, क्योंकि आप ऐसा मान के बैठ गए हैं कि भाई दिल्ली में तो सब कोई चोर है। तो दैट इज योर बिलीफ। तो आपकी बिलीफ कितनी पावरफुल होती है, उसके लिए हम छोटा सा गेम खेलेंगे। आई होप एवरीबडी कैन हियर मी। आप अभी सुन सकते हैं ना सब मुझे? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आप सुन सकते हैं। ओके, ग्रेट, सुपर, सुपर, बढ़िया। ओके, अभी मैं आपको एक
क्वेश्चन एक छोटी सी हम बहुत जल्दी से एक छोटी सी गेम खेलते हैं। अभी आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, आपको अपने रूम में से लाल कलर कितनी जगह पे है वो ढूंढना है। जहां पे भी आप बैठे हैं अपने रूम में, आप देख सकते हैं लाल रंग कितनी जगह पे है। आपके पास 30 सेकंड है, और जो भी ज्यादा से ज्यादा लाल कलर ढूंढ पाएगा उसको हम, अभी अभी बोलना नहीं है, आफ्टर 30 सेकंड्स जो भी ज्यादा से ज्यादा रेड कलर ढूंढ पाएगा उसको लास्ट में हम कोई छोटा सा गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो अब लिखना नहीं है प्लीज, किसी को अभी लिखना नहीं है। 30 सेकंड में शुरुआत करूंगा तो सब लाल कलर ढूंढना है, रेड कलर। चलो शुरू करते हैं। 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। सभी अपने रूम में आजू बाजू में देखे लाल कलर कितनी जगह पे है, रेड कलर। कम ऑन एवरीबॉडी, लिखना नहीं है प्लीज, डोंट राइट नंबर्स। आपको अपने रूम में लाल कलर कितनी जगह पे है वो आपको देखना है, मतलब कितनी कितनी जगह पे है लाल कलर, आपको वो स्पॉट करना है। मतलब कि मेरे टीवी यूनिट में जो एक पोर्शन है वो लाल कलर का है, जो अभी मेरे बेडरूम में ये लाल कलर है, वो आपको देखना है। चलिए ढूंढिए फटाफट, 10 सेकंड बाकी रह गई है। लाल कलर लिखना नहीं है किसी को, लिखना नहीं है किसी को, अभी सभी को ढूंढना है लाल कलर, लाल कलर, लाल कलर, लाल कलर। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, लाल कलर, लाल कलर आपको ढूंढना है, लाल कलर अभी। ओके ओके ओके, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। अब कोई लिखेगा नहीं, टाइम इज अप, 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 टाइम इज अप। ओके, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पूछूंगा। अभी आपके घर में आपको क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंटली कौन सा आंसर दे पाएंगे? मैं अगर पूछूं आप लाल कलर कितनी जगह पे है, इसका कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाएंगे, कि येलो कलर कितनी जगह पे है उसका आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे? किस आंसर का, कौन सा आंसर आप दे पाएंगे जल्दी से? रेड, राइट, रेड, 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 यस, 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 रेड, यस, रेड। अभी देखिए, अभी 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 इसमें से अभी आपको जो लेने वाली बात है वो ये है कि आपका माइंड जो है वो एक फिल्टर है। यानी आपने अपने फिल्टर को क्या आदेश दिया कि क्या ढूंढना है? रेड कलर। तो उसने इस सभी कलर में से आपको क्या ज्यादा दिखाए? लाल कलर। यानी आपका जो बिलीफ, यानी जी आपका फिल्टर था वो था रेड कलर। कितनी जगह पे है रेड कलर? तो आपका ब्रेन ने स्कैन किया है, आपका ब्रेन स्कैन कर रहा था कि भाई रेड कलर कितनी जगह पे है। तो सबको ही कलर थे वहां पे, लेकिन आपको दिख कौन सा रहा था? लाल कलर, सिर्फ लाल कलर। ठीक है, तो अभी ये आपको समझना है कि आपका बिलीफ जो है वो एक फिल्टर है। और अभी जो मैंने गिफ्ट का बात किया था, वो गिफ्ट का बात मैंने इसलिए किया था कि आप थोड़ा ध्यान दें इसमें। ठीक है, तो अभी वो गिफ्ट का कुछ हम सोचेंगे, लेकिन ये जो छोटी सी एक्सरसाइज है उसमें से आप क्या सीख सकते हैं? कई कई लोगों को ऐसा भी हुआ होगा कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए लाल कलर जो नहीं है उसको भी लाल कलर में आपको ले लिया है। आपने जो लाल कलर नहीं था उसको भी लाल कलर में ले लिया, क्योंकि अपना काउंट हाई हो जाए। ऐसा भी हुआ होगा। तो इससे आपको क्या मालूम होता है? इसमें से आपको ये मालूम होता है कि जो भी आप अपने माइंड को कमांड देंगे या बिलीफ बनाएंगे, वो आपका माइंड ऐसे ही आपको दुनिया दिखाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो आपका बिलीफ है वो बढ़िया रहना चाहिए। अगर आपका बिलीफ बढ़िया रहा तो आपका लाइफ भी बढ़िया होगा। जैसे आपने अभी रेड कलर ढूंढना चाहा तो वो मिला, तो वैसे ही आपका जो बिलीफ स्ट्रॉन्ग रहा तो आपको वही मिलेगा जो आपने फिल्टर दिया है। तो दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ। सो बिलीफ बढ़िया रखिए जिससे कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सके। Great. So we'll move on to the next point. Thank you very much for all the participation. Thank you very much. Okay, we'll move on to the next point. And the next point. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. The next point is motivation. Next point is motivation. नाउ अभी मोटिवेशन सबने सुना होगा। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन अगर किसी को हम सुनते हैं जो एकदम पैशन से बात करते हैं, जो एकदम उत्साह से बात करते हैं, उसको देख के हमें एक जुनून आ जाता है। वो कोई सॉन्ग हम सुनते हैं उसके बाद हमें एक जुनून आ जाता है कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो इसको मोटिवेशन कहते हैं। अगर मोटिवेशन जो वर्ड है
उस मोटिवेशन वर्ड को अगर हम तोड़ दें तो क्या होता है, मोटिव फॉर एक्शन। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके करियर में आप अभी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन मतलब आपका वाई क्या है। वाई यानी सैलरी तो है ही है, चलिए ठीक है, लेकिन मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपको सक्सेस की टॉप पे पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो सैलरी माइंडसेट से आप काम नहीं कर सकते। आपको आपका जो वाई है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका जो वाई है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं अभी क्लियर करता हूं मोटिवेशन क्या होता है। तो अभी इस ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं फिर से। सपोज अभी आप सब जो बैठे हैं, जहां पे भी अपने घर में बैठे हैं, तो अभी आप बैठे हैं, अभी मान लीजिए मैं एक 6 फुट का एक लकड़ी का फट्टा लेता हूं और वो नीचे रख देता हूं आपके पैरों के साइड में। 6 फुट लंबा है और 3 फुट आड़ा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस लकड़ी के फट्टे पे चल के दूसरी साइड तक चलना है, तो क्या आप चल पाएंगे, यस और नो। आपको यस और नो लिखना है। नीचे ही पड़ा हुआ है आपके बाजू में, आपके बाजू में पड़ा हुआ है, आप चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। यस, श्योर, ओके, सुपर, ग्रेट, सभी कोई चल पाएगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू ऑल। ओके, अभी हम इस सिचुएशन को चेंज करते हैं। चलिए अभी कौन यस लिखता है मैं देखता हूं। चलो अभी मान लीजिए 11 माले की 2 बिल्डिंग है सामने सामने, और एक जो लकड़ी है, लकड़ी का जो जो ये फट्टा है मैं ऊपर लेके जाता हूँ, और एक जो एक साइड है इस बाजू रखता हूँ, और दूसरा जो फट्टे का जो साइड है वो सामने वाली 11 माले की बिल्डिंग में रखता हूँ, और नीचे पूरा आप अगर गिरे तो आप मर सकते हैं। अभी आपको मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 1000 रुपीज देता हूँ, अभी आप चले जाएं इस पे, तो आप चल पाएंगे, यस और नो, हाँ के ना। नो, ओके, एवरीबडी विल से नो, डेफिनेटली। ओके, कोई यस वाला तो बंदा मिल जाए मुझे। चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सी एवरीबडी सेज नो, ओके डन। मैं सिचुएशन चेंज करता हूँ, चलिए शांति से सुनिएगा, मैं सिचुएशन को चेंज करता हूँ। अभी आप इस बाजू पे खड़े हैं बिल्डिंग के। अभी आप आपके जीवन में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सपोज वो सामने की बिल्डिंग में एक होटल है, उस होटल में है वो आपके माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि ये कभी आपके साथ हो, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप वो समझ लीजिए सामने की बिल्डिंग में है, और आपने सुना कि वहां पे आग लगी हुई है। तो अभी मैं आपको 1000 रुपीज नहीं दे रहा हूं, तो भी यहाँ से कितने लोग ट्राई करेंगे वहां पे जाने के लिए, हाँ लिखिए या ना लिखिए। कौन जाएगा बचाने के लिए अपने लव्ड वंस को? सब कोई जाएंगे, सब कोई जाएंगे। अभी समझिए ये चेंज क्या हुआ, व्हाट इज द चेंजिंग फैक्टर। आपका क्या चेंज हुआ, मोटिवेशन चेंज हुआ। इससे पहले आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं था, 1000 रुपए के लिए तो आप जा ही नहीं रहे थे। पैसा दिया था मैंने आपको 1000 रुपए, तो आप तो नहीं गए। तो अभी क्या हुआ, वो मोटिवेशन चेंज हो गया, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही है, मैं मतलब मर जाऊं उनको बचाने के लिए, लेकिन मैं मेरे आदमियों के लिए, मैं मेरी माँ के लिए वो करूंगा या करूंगी, मैं जाऊंगा भले ही मैं गिर जाऊं। तो ये समझिए बात कि ये आपका चेंज हुआ मोटिवेशन, और ये इंटरनल मोटिवेशन था। ऐसा नहीं हुआ कि आपने बोला कि भाई मैं एक सॉन्ग सुन लेता हूँ और मुझे मोटिवेशन आ जाएगा फिर मैं जाऊंगा। आपको अंदर से आया कि नहीं मुझे तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। समझिए ये बात को, अगर ये बात आपने इस प्रोग्राम से सीख ली, तो मैं एक बात गारंटी देता हूं कि आपकी करियर को टॉप पे पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मोटिवेशन बड़ी होनी चाहिए। समझिए आप जान पे भी खेल जाएंगे अगर आपका मोटिवेशन हाई हो गया। तो आपका जो आप काम करते हैं वो क्यों करते हैं? आपकी माँ के लिए आपको कुछ बनवा के देना है उनको, अपने घर के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, पूरे समाज के लिए करना है, क्या करना है आपको। सो हमेशा याद रखिए कि आपका जो मोटिवेशन है वो हाई होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, दंगल सभी ने देखी है? दंगल, दंगल मूवी, एवरीबॉडी हैज सीन दंगल, आमिर खान। अभी जो दंगल थी यस यस उस दंगल में जो शुरुआत थी, आपको मालूम होगा पहले आमिर खान जो है वो आमिर खान पहले यंग होते हैं, और फिर जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो एज होते हैं, उनकी बच्चियां होती है और उनको वो ट्रेनिंग देते हैं।
अभी जो रियल में हुआ था, रियल में ये हुआ था कि आमिर खान जो है उसने ऐसा बोला था कि मैं पहले पापा वाला रोल पहले निभाऊंगा, इसीलिए तो उन्होंने पहले अपना वजन बढ़ाया। तो जब डायरेक्टर ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर मैं वजन बढ़ा लिया मैंने पहले, तो अभी मेरे पास एक मोटिवेशन रहेगा कि अभी मुझे जो मैं यंगर वर्जन है मेरा मूवी में, उसके लिए मुझे उतारना है। अगर मैंने पहले अभी मैंने पहला वाला शूट कर लिया, तो क्या होगा कि मेरे पास कुछ मोटिवेशन नहीं रहेगा कि मैं क्यों पतला हूं। इसीलिए उन्होंने पहले वजन बढ़ाया और फिर घटाया, तो उनके पास मोटिवेशन रहे कि भाई मुझे अभी अपने जो मूवी के पहले वाले सीन्स है वो करने बाकी हैं, क्योंकि वो एक टाइम में एक ही मूवी करते हैं। तो ये जो है वो क्या है, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज वेरी पावरफुल। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी बाहरी मोटिवेशन, कोई बाहर से आपको कोई बोलता है, आपने कोई वीडियो ऑडियो देख लिया, वो थोड़े टाइम रहेगा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपको जीवन भर कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सोचे, अभी सोचे कि आपका क्या एक मोटिवेशन है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वालिटी जो टॉप एम्प्लॉइज में होती है वो क्या होती है? दे आर टीम ओरिएंटेड। टीम ओरिएंटेड, सी एवरीबडी विल अग्री विथ मी दैट जब हमारे पास सचिन तेंदुलकर थे तो हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। एक एक बंदे से कोई भी टीम जीत नहीं सकती है, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। उसके लिए हमको टीम एफर्ट चाहिए होगी। अगर हम कोई सब साथ में होंगे तो हम उस चीज को बढ़िया बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। अभी हम क्यों जीत रहे हैं साथ में? क्योंकि हम एक टीम की तरह, एक इंडियन क्रिकेट टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया टीम प्लेयर बनाना है। हमेशा याद रखिए, टीम प्लेयर का खुद का कोई ईगो नहीं होता है। टीम प्लेयर हमेशा अपनी टीम के बारे में पहले सोचता है कि भाई इसको, इससे मेरी टीम को फायदा है। सपोज ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। एक टीम प्लेयर हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचता है। एक लीडर हमेशा अपनी टीम के बारे में पहले सोचता है। मुझे एक घटना याद आ रही है। मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, 1995-96 होगा। उसमें जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज गई हुई थी, अनिल कुंबले, आपको सबको मालूम होगा अनिल कुंबले, वेस्ट इंडीज के साथ वो मैच था, टेस्ट मैच था। और उसमें अनिल कुंबले बैटिंग कर रहे थे और मर्व डिलोन का उनको यहाँ पे एक चिन में बॉल लगा, तो वो गिर गए, बहुत खून निकला। तो उन्होंने बैटिंग फिर भी शुरू रखा, 20 मिनट तक उन्होंने बैटिंग शुरू रखा, फिर वो आउट हो गए। और उन्होंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने ना बोला कि भाई नहीं, आप ये टेस्ट मैच अभी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आपका चिन क्रैक हो चुका है, वो यहाँ पे रहे मीन्स वो नीचे गिर जाएगा। तो उनको वो मैच से निकाल दिया गया और वो कल घर जाने वाले थे, उनकी टिकट भी आ चुकी थी। अभी वो दिन में आप वो क्लिपिंग भी देख सकते हैं। ब्रायन लारा बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो सबको लग रहा था कि अभी इंडिया मैच हार जाएगा। अनिल कुंबले तब डॉक्टर से सलाह लिए, तब हमारे फिजियो थे एंड्रू लिपस, तो तब वहां पे उनको जाके उन्होंने पूछा कि भाई मैं वापस क्या खेलने जा सकता हूँ? तो वो बोले जा तो सकते हैं, लेकिन आप अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि आपका चिन तो टूटा हुआ है। तो बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। फिर उन्होंने यहाँ पे पट्टी बांधी अपने 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 फेस पे, क्योंकि वो चिन निकल न जाए, वरना वो चिन पूरा गिर जाता। और वो अपनी टीम के लिए गए और उस दिन उन्होंने ब्रायन लारा का विकेट लिया और फिर उन्होंने बोला कि अब मैं इंडिया आराम से जा सकता हूं। तो अभी आप इस एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हैं? उन्होंने अपनी टीम के बारे में सोचा। उनको पेन तो बहुत हो रहा होगा। एंड्रू लिपस तब उन्होंने नेक्स्ट इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि भाई जो भी वो एक एक स्टेप लेते हैं अपनी बॉलिंग के लिए, तो उनको 100 सुइयां लगती है, उतना पेन होता होगा। तो फिर भी उन्होंने वो पेन लिया। क्यों लिया? अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए लिया। तो आपको भी ये जो टाइम है, ये जो टाइम है अभी, कि जो टाइम में तकलीफें हैं, अभी मालूम नहीं है क्या होगा। बहुत सारे लोग अभी सेमिनार वगैरह कर रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा, एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है क्या होगा। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। यानी मेरा बिजनेस, मेरा टीम अभी प्रॉब्लम में है, मैं क्या कर सकता हूँ उस टीम के लिए, मैं उस टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, उस टीम को जिताने के लिए।
हमेशा याद रखिए, जब जब बार आप अपने बिजनेस टीम को जिताएंगे, आपकी बिजनेस आपकी टीम भी आपको जिताएगी। अभी आप अनिल कुंबले को जो पोजीशन मिला है आप देख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आपका टीम वर्क बढ़िया होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं तो आप अपनी टीम, अपने बिजनेस को कभी हारने नहीं देंगे, और उसके लिए जो करना है वो आप कर जाएंगे। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी अभी जो भी यहाँ पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अभी अपने घर पे, कल से उन सबको ऐसे कंप्यूटर यूज करना है। आप सबके बॉस ने ऐसा बोला है कि कल से आपको ऐसे कंप्यूटर यूज करना है। तो सब रेडी है करने के लिए? यस नो? यस नो? नहीं? यस नो? ट्राई? ओके, सी दिस इज जस्ट, किसी को करना नहीं है। जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ सकते हैं। अभी 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 ये करना नहीं है। एक्चुअली मैं फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? सपोज देखिए, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, अभी कुछ भी हो सकता है ना। अभी शायद आपने 2 महीने पहले नहीं सोचा होगा कि मैं घर से काम करूंगा, या तो फिर ये सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर सिचुएशन आ गई है तो आपको वो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज करना होगा। आपको नई नई चीजें सीखनी होगी। कई लोग 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जूम को जानते भी नहीं होंगे, अभी वो जूम में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। तो आपका जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब क्या, आपका जो अप्रोच रहना चाहिए वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यानी अगर अगर वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं, पानी। पानी क्या रहता है? पानी को आप किसी भी चीज में डाल दो वो वैसा बन जाता है। मतलब वो अपने पास वो अपना कोई फॉर्म ही नहीं है उसका, जिसमें डाला वो वैसा बन गया। तो आपको भी अपनी जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अभी बढ़िया बना के रखना है। मतलब जो भी हो जाए मैं करूंगा, जो भी काम आए मैं करूंगा, घर से करूंगा, मैं छत से करूंगा, कहीं से भी मैं करूंगा, लेकिन मैं काम करूंगा। ये क्या हुआ? ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी 100% बना के रखनी है। इस सिचुएशन से जब जब बाहर आ जाएंगे तो कुछ डायनेमिक्स बिजनेस के चेंज हो सकते हैं, आपके वर्क के डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं। तो आपको रेडी रहना है, आपको अपने माइंड को रिजिड नहीं रखना है। अगर आप पानी और ನೀರು पत्थर ಬೇರೆ का ನಂಬರ್ एग्जाम्पल लखिला लेंगे, अगर आप पानी और पत्थर का एग्जाम्पल कोई लेंगे, पूछो तो पत्थर जो है, वो पत्थर अगर आप किसी वेसल में डालते हैं तो अगर उस साइज का वेसल है तो पत्थर उसमें ही आएगा। अगर उससे छोटा हुआ तो पत्थर अंदर नहीं जाएगा। अगर आप फिर भी ज्यादा ट्राई करेंगे तो या तो पत्थर टूटेगा या तो फिर वेसल टूटेगा। तो आपको टूटना नहीं है। आपको आपके माइंड को पानी की तरह रखना है, अपने विचारों को पानी की तरह फ्लेक्सिबल रखना है, अपनी थॉट प्रोसेस को पानी की तरह फ्लेक्सिबल रखना है कि जैसे सिचुएशन होगी मैं सिचुएशन के हिसाब से काम करूंगा। सो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जो टॉप एम्प्लॉइज रहते हैं वो अपने कम्युनिकेशन पे बहुत काम करते हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, स्पेशली फॉर सेल्स पीपल। जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन से आप अभी सभी बिलोंग करते हैं। तो अभी जो कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा जिसको जरूरत होती है, यानी सेल्स पीपल, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा और उनको मैं एक टूल देना चाहूंगा जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो सके। पहले तो देखते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज व्हाट? Communication is just transference of your thought, your idea to the other person exactly as you thinking it. मतलब क्या हुआ? मतलब यानी जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही मैं सामने वाले को अपनी बात पहुंचाऊं, दैट इज कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेल्स में बात करें तो सेल्स में आपका जो कम्युनिकेशन है, इट हैज टू बी वेरी परफेक्ट। आपका सेल्स में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है, वॉक इन्स आ रहे हैं, तो अगर जब से वो आपके साथ जुड़ता है और वो फिर जाता है, तब से जो वो पूरा ट्रांजैक्शन है, वो जो पूरा प्रोसेस है, उसमें आप क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा आप सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली फॉर द सेल्स पीपल ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के जो ओनर्स उनके एम्प्लॉइज आए हुए हैं, उनके लिए मैं एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा। हम ये जो सभी हमने जो अभी क्वालिटीज की बात की, उस सब के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। तो एक जो अभी मैं आपको देना चाहूंगा सेल्स के बंदों को, दैट इज एक्रोनियम में एक देना चाहूंगा, दैट इज एप्पल।
अभी एप्पल क्या है, आप कुछ डायरी वारी लेके लिख सकते हैं उसमें। आप एक्रोनियम है यानी APPLE लिखिए, APPLE, और उसका कुछ मतलब होता है सबका, यानी ए का कुछ मतलब है, पी का कुछ मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ए, दैट इज अप्रोच विथ अ वार्म स्माइल एंड अ जेस्चर। मैं स्पेशली ये जो जेम्सन ज्वेलरी एसोसिएशन के जो अभी सेल्समैन हैं, जो अभी शोरूम्स में है, उनके लिए है ये, कि जब भी कोई वॉक इन आता है तो सबसे पहला ए है अप्रोच विथ अ स्माइल एंड अ जेस्चर। मतलब आप खड़े हैं, आपके पास क्लाइंट आया, आपको एक स्माइल देनी है और एक जेस्चर करना है। जेस्चर कैन बी नमस्कार, और आप हैंडशेक कर सकते हैं अगर मेल मेंबर है तो दैट इज द फर्स्ट ए। उसके बाद पी, पी का मतलब क्या है? प्रोब पोलाइटली एंड क्रिएट अ कनेक्शन। मतलब क्या हुआ? सेकंड पी, प्रोब पोलाइटली एंड क्रिएट अ कनेक्शन। मतलब आपको उसके पास से जानना है प्यार से कि उसका जो जरूरत है वो क्या है, अभी वो क्या ढूंढ रहा है, एंड क्रिएट अ कनेक्शन, उसके साथ एक कनेक्शन बनाने का कोशिश कीजिए। Probe politely and create a connection. After that, present your best product artistically. थर्ड जो पॉइंट है, प्रेजेंट योर सोल्यूशन। मतलब आपने देख लिया कि उसको क्या चाहिए। वो शायद अपने अपने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए वैलेंटाइन रिंग के लिए आया है, तो अभी आपको मालूम हो गया है कि भाई इसको ये चाहिए, ठीक है, तो अभी आपको प्रेजेंट योर बेस्ट प्रोडक्ट आर्टिस्टिकली। मतलब आपको आर्टिस्ट की तरह अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। आप सोचिए, आप कई जगह पे मोबाइल लेने जाते होंगे, कोई कोई ऐसे ही मोबाइल रख देता होगा, कोई कोई पहले एक ट्रे रखेगा, फिर हाथ में ग्लोव्स होंगे, फिर वो ऐसे रखेगा जैसे कोई 5 करोड़ का मोबाइल आपको दिखा रहा है, होगा 10,000 का। तो ये चेंजेस है, यानी ये जो आप अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट हैज टू बी प्रेजेंटेड आर्टिस्टिकली। आफ्टर दैट एल जो आता है, APPL, एल जो है वो लिसन केयरफुली फॉर कंसर्न्स। अभी वो क्या बोल रहा है वो ध्यान रखिए। अभी जो आप अभी अपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, तो वो कुछ आपको कंसर्न्स बोलेगा, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या उसका कंसर्न है, उंगली में है तो उसका कोई कंसर्न है, उसको उसका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं आप। लिसन केयरफुली फॉर कंसर्न्स एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। आप कंसर्न्स को सुनना है और उस आपको सोल्यूशन देना है, दैट इज एल। अभी आपका वहां पे 4 APPLE हो गया। लास्ट ई, E is exit with a fond farewell and an invitation to return। मतलब जब वो जा रहा है तो आप उसको जो बाय करेंगे, वो गुड बाय सर, गुड नाइट सर, हैव ए नाइस डे सर, सर आप फिर कब आएंगे, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। जब भी वो जाता है तब उसका जो बाय होता है यानी फेयरवेल होता है वो बढ़िया होना चाहिए। और APPLE यहाँ पे खत्म होता है। प्लस आर एक एडिशनल मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज रिमेंबर देम ऑफन। उनको याद करिए, यानी आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है तो उसका नाम नंबर तो शायद होगा ही आपके पास, तो उसको आप याद करिए थोड़े थोड़े दिन। सर आप कैसे हैं, आप उसको, अगर आपके पास एनिवर्सरी बर्थडे है तो आपको कॉल कर सकते हैं, आप उसको मैसेज भेज सकते हैं। आप खाली सेल्स के लिए आपको उनको नहीं, उनको लगना चाहिए कि उनको मेरे में इंटरेस्ट है। So APPLE plus R. So this is a tool that I'm giving, और ये मैं आप सबको बाद में किसी भी तरह से देने का कोशिश करूंगा। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सब कुछ नहीं दे पाऊंगा। So we will move on to the next point. Now this is taking initiative. टेकिंग इनिशिएटिव यानी क्या? टेकिंग इनिशिएटिव माने कि सपोज आप प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट, यानी जो ये पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, आप किसी बिजनेस या तो फिर आप ज्वेलरी में है और आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो अभी सपोज आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपको एक ख्याल आया कि भाई अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हमारा जो ये प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कम हो सकता है, या तो फिर ऐसे हम थोड़े पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको आइडिया आया, अभी आइडिया तो आया आपको, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन आपने किसी को प्रेजेंट नहीं किया, आपने अपने बॉस को नहीं बोला, आपने अपने मैनेजर को नहीं बोला, आपने अपने तक ही रखा, तो मतलब आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या हुआ? जो आदमी पहल करता है, जो आदमी शुरुआत करता है किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं टेकिंग इनिशिएटिव। तो आपने वो अगर आइडिया अपने बॉस को बताया होता कि सर मैं ये जगह पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि भाई ये चीज ये मैम ये से करने से ऐसे करते हैं तो हम कंपनी को फायदा होगा, तो आप आइडिया प्रेजेंट किया, मतलब आपने क्या लिया? इनिशिएटिव लिया। हम 100% एक बात मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं कि जो भी ओनर्स यहाँ पे, जो भी ओनर्स हैं,
उन सब ओनर्स को एक चीज सबसे अच्छी लगती है, वो है एम्प्लॉय जो इनिशिएटिव लेता है, जो कुछ नई चीजें करता है, जो कंपनी के लिए कुछ नई चीजें करता है, जो अपनी टीम के लिए कुछ नई चीजें करता है, जो अपनी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कुछ नई चीजें करता है, जो अपनी बैक ऑफिस के लिए नई चीज करता है। आपको आज से या तो फिर जब ये सब नॉर्मल हो जाए, आप इनिशिएटिव, ऐसा नहीं है, आप घर पे भी ले सकते हैं। आप अपने अभी जो लॉकडाउन है उसमें कुछ नया अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं कि भाई कल से हम सब घर में लोग साथ में 7 बजे एक्सरसाइज करेंगे। सो दैट इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो आपको इनिशिएटिव लेना है अभी, और फिर जब ये नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ शुरू हो जाता है, तब अपने बिजनेस में भी आप ये कर सकते हैं। आप कहीं पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको एक लीडर होना चाहिए। कई बड़ी बड़ी कंपनी में जो आइडियाज, बढ़िया बढ़िया आइडियाज है, वो नीचे के लोग देते हैं। तो आपको अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये मेरा आइडिया है, तो हो सकता है कि वो बेस्ट आइडिया हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, अपने आप को आप उतना आपको अपने आप पे विश्वास नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इनिशिएटिव लीजिए, आगे बताइए। सर नेक्स्ट प्लीज। ओके, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेमिनार। लास्ट एक दो पॉइंट रह गए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्फिडेंस। जो टॉप के एम्प्लॉइज होते हैं, जो 2000 ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसर्च है उसमें जो ये टॉप की क्वालिटी सभी हैं, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। कॉन्फिडेंस आप सब में बहुत ही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस यानी कि क्या? कॉन्फिडेंस यानी आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास, कि मैं किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ सकता हूँ। सिचुएशन कोई भी आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे आगे ले जाने में मेहनत करेगा, मुझे आगे ले जाने में मदद करेगा। मैं मेरी मेहनत से आगे जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। सो योर कॉन्फिडेंस इज वेरी पावरफुल। इट कैन टर्न यू इनटू अ सुपरमैन। आपको एक सुपरमैन बना सकता है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया तो। कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज में। अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज आ गया जो आप नहीं कर पाएंगे, अगर कॉन्फिडेंस है, आप 100% कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आप चीजों से बचते रहेंगे, बड़ी बड़ी मुश्किलों से आप बचते रहेंगे, बड़ी बड़ी चैलेंजेस से आप बचते रहेंगे। आपका आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। कॉन्फिडेंस दो टाइप के होते हैं, वन इज इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। दो टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि कई कई लोग को आप अगर मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, तो उसका एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस बहुत है, यानी कि वो बढ़िया कपड़े पहनता है, वो अपने हैंडशेक उसका बढ़िया रहता है। अगर आपको मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस उसका गजब का है। तो दैट इज एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। इंटरनल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? इंटरनल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मतलब कि सेल्स में है तो आप सेल्स में कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि कोई भी क्लाइंट आ जाए, मैं उसको 100% बेच सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर ये बंदा मुझसे मेरे पास लेने आता है तो मैं 100% उसको बेच सकता हूँ। अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मोस्टली हम हमारे क्लाइंट्स के साथ जब जुड़ते हैं तो मैं कई सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह देता हूँ एम्प्लॉइज को। अभी सारी तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक मैं अभी आपको शेयर करता हूँ जो कॉन्फिडेंस की है, जो आप उससे अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। दैट इज इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस। दो चीजें, इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस। सपोज अभी आप सेल्स में है तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप नॉलेज ज्यादा लेंगे अपनी स्किल के लिए, और आप जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, तो आप क्या होगा कि आपको वो कॉन्फिडेंट ज्यादा से ज्यादा बनाता जाएगा। तो एक की जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, दैट इज नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। जितना नॉलेज लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना प्रैक्टिस में यूज करेंगे आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि भाई नहीं ठीक है, चलो ये काम कर रहा है। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो क्लाइंट मुझसे ज्यादा बात करता है, अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूँ तो क्लाइंट मुझसे ज्यादा बातें करके वो ले जाता है। तो ये क्या हुआ, आपने उसको वैलिडेट किया। तो नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, दैट इज नंबर वन की। बाकी बहुत सारी की है, मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये आप चीज कर सकते हैं अपने लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। वी आर कमिंग टू द एंड एंड दिस इज द लास्ट वन। सबको भूख लगी होगी, या तो फिर अगर खाना खा के आए हैं तो नींद आ रही होगी। तो अभी दिस इज द लास्ट वन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन वर्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, मैं चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी से, आखिरी क्वेश्चन है। सुनिएगा शांति से। मेरे में, अमिताभ बच्चन में,
सलमान खान में और ऐश्वर्या राय में, इन चारों में कौन सी चीज कॉमन है? क्या बात हम चारों में कॉमन है? कौन जवाब देगा? चलिए, व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन मी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय? Yes, absolutely right, absolutely right. A few of them has nailed it. We all have 24 hours. Absolutely right. I have a great audience. Thank you very much. So, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। वैसे आपके पास भी 24 घंटे हैं। अभी उस 24 घंटे को हम यूज कैसे करते हैं, वो डिसाइड करेगा हम कहाँ जाते हैं। अगर आपने अपने समय को, यानी अपने टाइम को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, तो आप मानेंगे नहीं, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आपको जो 24 घंटे मिलते हैं, जो 24 घंटे मिलते हैं आपको, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। कैसे आप अपने घंटे को स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैं 100% बिलीव करता हूं कि यहाँ पे जो जो बंदा प्रेजेंट है, वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। और आप सब में वो पोटेंशियल है, आप सब आगे जा सकते हैं, आप सब टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने टाइम को महत्व देना होगा, उसको रिस्पेक्ट देना होगा। तो जैसे जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं, तो देखिए आप कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 2-3 दिन आप मार्क कीजिए। सपोज अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन है, कितना टाइम है आपके पास, सोचिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अभी ऐसा कोई टाइम आने नहीं वाला है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक तो नहीं आएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अपने टाइम को मैनेज करिए। जब आप जॉब करते थे तो आप 7 बजे उठ जाते थे, अभी 10 बजे भी नहीं उठते हैं। रात को पहले आप 10 बजे सो जाते थे, अब 3 बजे भी नहीं सोते हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हो गई हैं जो आपका टाइम को बर्बाद कर रही है। तो अभी ऐसा मत होने दीजिए। खड़े हो जाइए, जाग जाइए कि इस टाइम को मुझे संभाल के रखना है, क्योंकि एक-एक दिन इम्पोर्टेंट है। हम सभी अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। कोई 100 साल में मरेगा, कोई 80 में मरेगा, कोई 120 में मरेगा। मैं चाहता हूँ सब 100 में मरे, लेकिन हम अपनी मौत की तरफ जा तो रहे हैं। एक-एक दिन कम तो हो रहा है अपने जीवन में से। तो उस दिन में आप क्या कर सकते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाएँगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम कई सारी स्ट्रेटेजीज देते हैं, कई सारे फ्रेमवर्क्स देते हैं अपने क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज को, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ का एक शेड्यूलिंग कर सके और जो आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। रतन टाटा का एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि रतन टाटा जब अपने ऑफिस से गाड़ी में जाते हैं, तो आपका जो बीच का जो टाइम है, उसमें भी वो 2-3 काम कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने टाइम को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपका टाइम, भले ही आप आज एम्प्लॉई हैं, कल आप मैनेजर बन सकते हैं, फिर लीडर बन सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपको टाइम को बढ़िया तरीके से मैनेज करना है। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड। अभी 2-3 फ्रेमवर्क में टाइम मैनेजमेंट में देना चाह रहा था, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स टू द ओनर्स, जो भी ओनर्स यहाँ पे हैं। ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है सर, उसमें आप जितना हो सके अपने अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट कीजिएगा, अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट कीजिएगा। आज सुबह ही मैंने टीसीएस का मैं पढ़ रहा था, तो टीसीएस किसी भी आदमी को ले ऑफ नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो उसमें कम देंगे। तो ऐसा सभी डिसाइड कर रहे हैं। टाइम्स आर टफ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एम्प्लॉइज को भी आपके ऊपर बहुत आशाएं होंगी। तो आई होप आप सब अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, ये जब खुल जाएगा और जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कई ऐसे लोग होंगे जो ये सब फॉलो करेंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो ये नई राह पे चलना चाहेंगे, जो आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आप उनको रिवॉर्ड करिए, आप उनको ऐसा कुछ दीजिए जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो सके। उनको लगे कि भाई नहीं, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे सर ने अप्रिशिएट किया। आप कई कई बार सर क्या होता है, आप किसी को अगर पीठ पे थपथपा भी देते हैं ना कि भाई तूने बढ़िया काम किया, उसका दिन बन जाता है। तो ऐसे आप किसी का दिन बना सकते हैं। आप उसको महीने में उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं, कुछ छोटा सा 500-1000 रुपए का, तो हमेशा याद रखेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी ओनर्स से कि आप जितना हो सके इस समय में, और जब शुरू हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैक्सिमम एम्प्लॉइज को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉइज आर योर मेन एसेट। जो आपकी एसेट है वही आपका बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं। लास्ट में
what we focus on briefly, जो HR Total Outsourcing Private Limited as a business, हम हमारे clients के business में कहाँ पे focus करते हैं, that is strategic planning, creating employee SOPs, यानी कि ताला खुलने से लेके जो भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं वो हम क्रिएट करने में मदद करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में। फिर ट्रेनिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी करते हैं। देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम बहुत हेल्प करते हैं। देन मंथली रिव्यू रिपोर्ट करते हैं कि भाई जो डिसाइड हुआ था उसमें कौन कहाँ पे पहुंचा है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, ताकि वो उनको ऐसा फील हो कि भाई नहीं ये कंपनी हमारी है, कंपनी देख रही है कौन अच्छा काम कर रहा है और उसको मोटिवेशन मिल रहा है। कल्चर बिल्डिंग, आपका जो कंपनी है उसमें जो कल्चर जो है उस कल्चर को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए उसके ऊपर हम काम करते हैं। सो दैट इज स्मॉल पॉइंट्स दैट व्हाट वी डू एज अ बिजनेस, जो हमारे क्लाइंट के बिजनेस में, और बहुत सारा टूल्स फ्रेमवर्क्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सर। ओके, आई विश यू ऑल लॉट्स ऑफ सक्सेस। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और आप इस सिचुएशन से हम सब निकल जाएंगे। आई एम 100% गारंटीड। मैं अभी एक न्यूज देख रहा था कि इंडिया विल बी वेरी लेस इफेक्टेड ऑफ दिस लॉकडाउन और स्लो डाउन। यस, इफेक्ट तो होगा, 100% होगा, लेकिन देश में पूरी दुनिया में जो जितने देश हैं उससे कम होगा। तो हम एक पॉजिटिव रह के इस लॉकडाउन में भी अपने दिनों को कैसे बढ़िया बना सकते हैं वो सोचे, अपने करियर के बारे में सोचे। और इसी आशा के साथ मैं ये प्रोग्राम यहाँ हाँ, खत्म करता हूँ। नीरव भाई, मयूर भाई वोट ऑफ थैंक्स कर रहे हैं। मयूर भाई, कैन यू हियर अस? Yes. यस मयूर भाई, Just यस मयूर सर। अनम्यूट कर राजू। unmute myself. Okay. Are you listening me? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Hello. Yes, Mehul bhai. Yes, Okay. Mehul bhai. Okay, Nirav bhai, great session. I want to use brief note to thank you and congratulate you on the excellent presentation. Keep on signing. Thank you you, for putting your heart and soul into your lecture. We really learned a lot Thank from you, sir. all our side. Gems and Jewelry Association, heartily thank you. And Thank you. thanks to all participants who joined this webinar, and all participants, all the best for your new career. Thank you. Thank you, Nirav bhai. Thank you, Hiren bhai. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. I would like to thank Hiren sir as well, sir. I am forgetting you, sir. I am No, very sorry. it's all okay. અને નીરવ ભાઈ નો નંબર chat box માં લખ્યા છે. You can contact him anytime. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much. Yes. Thank you. बंद कर दो. Hmm.